Hello everyone, welcome to my channel NK Vision 1971 में and this is Shraddha welcoming you people to my class and it is the 6th day of our 10th journey. In our spoken English course, as we have focused on tense and today we are at the 6th step of our 10th journey, no? And in this class, today we are going to learn the lessons on past progressive tense. Past progressive tense means past continuous. That जो काम अतीत में हो रहा था, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो जो कि अतीत में हो रहा था. So without wasting any time, let us continue our class and I am having a sincere appeal to the people without skipping the video. Watch from beginning to end and take out your notebook and pen. Note down every single notes, lessons and important points so that you can better understand. Okay, so without wasting any time, let us continue our class. So past progressive, as I told you, the structure of past progressive it is was, where plus base verb with ing form. इसमें डिफरेंस क्या है प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस में? That was each are in present continuous and the change in past progressive or past continuous it is was, where plus base verb plus ing. In affirmative sentence there is a little change, जैसे कि I, he, she plus was plus v1 plus ing. I, the first person in present continuous tense, it was I am. No, first person always single होता है ना, तो past form में am की जगह हम क्या यूज करेंगे? was. No, जैसे कि he, she के it के साथ हम was यूज करते हैं, कोई सिंगल पर्सन के साथ हम वॉच यूज करते हैं, आई भी, आई के साथ भी हम वॉच यूज करेंगे. जैसे आई वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, इट वॉज प्लेइंग, यू नो. एंड इन द प्लूरल फॉर्म में कौन कौन आते हैं? यू सेकेंड पर्सन, वी प्लूरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन and they plural form of he or she, you know, third person, with where plus v1 plus ing base verb with ing form means the present participle. No, present participle. Was, where plus present participle. You were playing, we were playing, they were playing in affirmative sentence. इसका नेगेटिव फॉर्म हम यूज करते हैं तो आई वॉच नॉट v1 प्लस ing. आई वॉज नॉट ईटिंग, हमने एक सेंटेंस में खाना नहीं खा रही थी. आई वॉज नॉट ईटिंग, आई वॉज वेरी चूजी. बचपन में मैं बहुत अच्छे से खाना नहीं खा रही थी. ही वॉज नॉट ईटिंग, शी वॉज नॉट ईटिंग. And in plural form, you were not reading, we were not reading, they were not reading. मीन्स हम कोई भी वर्ब फॉर्म को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो फॉर्मेट वो रहेगा सिंगल पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ. वॉच नॉट प्लस
V1 plus ing means the present participle, and plural form में you, we, they, with, where not plus V1 plus ing means the present participle. And so in interrogative form हम अपना सेंटेंस कैसे बनाएंगे? पहले was, then first person singular number, third person singular number plus present participle. Was plus I, he, she plus present participle means V1 base verb with ing form. सेंटेंस ऐसे बनते हैं, was I reading, was she playing, was he playing, was she dancing, and in the plural form, were you teaching, were we playing, were they singing with the question mark. No, it is also interrogative, also a sentence. So लास्ट में जैसे कि हम फुल स्टॉप डालते हैं हमारे फुल सेंटेंस के बाद, कोई सेंटेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क देते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ टेंस आल्सो यूज्ड इन सच अदर सेंटेंसेस दैट कंटिन्यूड। हमारे स्ट्रक्चरल मेथड के अलावा भी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हम अपने सेंटेंस कुछ इस तरह भी बनाते हैं, जैसे पास्ट प्रोग्रेसिव एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर वक्त में हम क्या काम करते थे, जैसे कल सुबह में कुछ काम करते थे, परसों शाम को हम कोई काम करते थे, हफ्ते पहले हम कहाँ गए हुए थे। इसको हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग मीन्स आज, आज सुबह में गार्डन में, आज यानी इट इज टुडे नो। तो हो सकता है कि आप बोल सकते हो कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। जो इस अभी जो काम कर रहे हैं उससे पहले जो करते थे वो भी हमारे पास्ट प्रोग्रेसिव में ही आता है। तो आज सुबह मैं गार्डन में काम करती थी। आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड ऑन फोन एट 7 in the evening। शाम को 7 बजे वो अपने दोस्त के साथ फोन पर था। और ये एक सेंटेंस देखिए, इट वॉज रेनिंग ऑल डे येस्टरडे। येस्टरडे यानी कल, डे कल, ऑल डे येस्टरडे। इसका मतलब क्या होता है? कल सारा दिन बारिश हो रही थी, ठीक है। और इसके अलावा भी हम अपने सेंटेंस कुछ इस तरह बनाते हैं, जैसे कि पास्ट प्रोग्रेसिव में दो काम एक साथ कैसे होते हैं, ठीक है। पास्ट प्रोग्रेसिव ऑल्सो रेफर टू टू एक्टिविटीज गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट। मतलब पास्ट प्रोग्रेसिव में अतीत में दो काम एक साथ कैसे होते हैं, और इसमें हम अपने सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम वहां यूज करते हैं किसका? एक कंजक्शन लेते हैं, व्हाइल का यूज करते हैं। जैसे कि आई वॉज सिंगिंग व्हाइल शी वॉज डांसिंग। व्हेन द बेबी वॉज क्राइंग, यहां पर मैंने कोई कंजक्शन का यूज नहीं किया है, सिंपल सेंटेंस मैंने बनाए हैं। व्हेन द बेबी वॉज क्राइंग द बॉय वॉज लाफिंग। लाफिंग स्माइल का जब हम कोई हंसते देते हैं, किसी बात पर हम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराना और हंसना इसका दो अलग मतलब होता है। लाफिंग यानी हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, जब किसी के परिहास करते हैं। हाँ,
when the baby was crying, the boy was laughing. नेक्स्ट सेंटेंस में I was singing, मैं गाना गा रही थी तब जबकि वो डांस कर रही थी, while she was singing. थर्ड सेंटेंस में the students were listening, बच्चे सुन रहे थे जब टीचर पढ़ा रहे थे. इसे हम कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं using the conjunction like while. Okay, so past progressive के कई तरीके होते हैं, हम कई प्रकार के हम अपने सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे कि हर बिहेवियरल लाइफ में, हम अपने बिहेवियरल लाइफ में हर एक जो बातचीत होती है, हमारे कन्वर्सेशन होता है, पास्ट में हम अभी करते हैं, पास्ट में हम कैसे करते थे और कौन कौन से वर्ब फॉर्म हम कैसे यूज करते थे, कौन सा कंजक्शन को हम यूज करते थे. तो इसका भी एक तरीका होता है, इसको भी हमने यहाँ एक्सप्लेन किए हैं और विथ डेफिनेशन, एंड यू मस्ट नोट इट डाउन सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. क्या पास्ट प्रोग्रेसिव आल्सो यूज्ड टू एक्सप्लेन एन एक्शन. लिखिए, सुनने के साथ साथ आप लिखिए, आपको ज्यादा अच्छा याद रहेगा. पास्ट प्रोग्रेसिव आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कोई भी काम को दर्शाता है. व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन अनदर थिंग हैपेंड, दैट वाज हैपनिंग, कोई काम हो रहा था. व्हेन अनदर हैपेंड, जब एक और काम भी हुआ था. ठीक है. इन सच केसेस, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वन वर्ब यूज्ड इन द पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल में जब हम एक वर्ब का यूज करते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, अनदर इज इन पास्ट प्रोग्रेसिव. तो ऐसे में सिचुएशन में हमारे सेंटेंस कैसे होने चाहिए. ही वॉज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, हम कहते हैं टेकिंग ब्रेकफास्ट, ईटिंग ब्रेकफास्ट, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा क्या, ही वॉज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट व्हेन आई टेलीफोन्ड हिम. ही वॉज हैविंग, इस पर फोकस कीजिए, वॉज हैविंग, वो खाना खा रहा था. व्हेन, हमने यहाँ उससे पहले हमने व्हाइल का यूज किया था अपने सेंटेंस में, और इसमें हमने क्या किया, व्हेन का यूज किया. व्हेन आई टेलीफोन्ड हिम, इट इज इन पास्ट सिंपल. नेक्स्ट सेंटेंस में फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. व्हेन समवन नॉक्ड ऑन द डोर, कोई आके दरवाजा खटखटाया. फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर. नेक्स्ट, आई वॉज आयरनिंग माई ड्रेस, मैं अपने कपड़े आयरन कर रही थी. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, तब जबकि लाइन चली गई. जब मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी तब लाइन चली गई. तो ऐसे इस तरह के कई ऐसे सेंटेंसेस, कई ऐसे बातचीत, कन्वर्सेशंस हमारे होते हैं जो कि हम पास्ट सिंपल, पास्ट में, अतीत में जब जिस तरह की बातचीत करते थे उसमें हम इस तरह के वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं. जब हमें सेंटेंस में ये सब लिखकर एक्सप्रेस करना पड़े तो हम इस तरह के वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे. ठीक है. So last but not the least, past progressive also used to express an action continuing over a period of time in the past. क्या पास्ट प्रोग्रेसिव को हम कोई भी एक्शन में यूज करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम में कंटिन्यू करता था. ठीक है. जैसे कि he was always making noise in the class, he was a very notorious boy. जब हम पढ़ते थे स्कूल में, ऐसा होता था कि एक लड़का था जो कि अक्सर क्लास में चिल्लाया करता था, शाउटिंग करता था, डिस्टर्ब करता था, पढ़ने नहीं देता था. तो इस तरह की सेंटेंस, ही वॉज ऑलवेज मेकिंग नॉइज इन द क्लास, कुछ नहीं, बस
इसमें हम कौन से वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वॉच प्लस V1 plus ing. Then the other part of the sentence. ठीक है? She was often shouting at her children. यहाँ पर subject plus past auxiliary. Then often shouting V1 plus ing at her children is part of the sentence. They were always asking for money. वो अक्सर पैसे मांगा करते थे. इस तरह की हम अपने बोलचाल, जो कि जब हम भूतकाल में बात करना हो तो हम इस तरह के वर्ब फॉर्म यूज करके अपने सेंटेंस को भी इजीली बना सकते हैं. ठीक है? एंड दिस इज ऑल अबाउट द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस of our tense journey. Means the 6th day of our class is over, and if you like this video, then give a thumb impression to like my channel, subscribe my channel so that it can grow from a teeny plant to a huge tree, and give your valuable comment, which is very much necessary for me, and share my channel as much as you can. And thank you all for watching, and we shall meet in the next class. Until then, bye bye.